Hello, hello friends. I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is family Fabaceae. This is dicotyledonous family, typical P family. P belongs to this. Earlier, this was known as Papilionoideae. Papilionoideae. This was as subfamily belonging to the family Leguminosae. But now it is Fabaceae family. And the characteristics we take, so we start with the vegetative characters. Vegetative character means which are not responsible for reproduction. So vegetative characteristics, first we have the habit. What type of plants are there? In this family, some plants are herbs, some are shrub, and some are trees. In case of herbs, what happens? This is ground, so a small delicate green stem arise from here, and then they bear the leaf. A small delicate stem. And in shrub, small stout woody stem arises, and then it branches and then rebranches, giving it the bushy appearance. This is shrub, झाड़ी की तरह के. Or trees, you know, stem grows longer and then it gives rise to the branches and bear the leaves. So the main difference is in stem, very delicate, thin, green, herbaceous, and here small, thick, woody, and here long, woody. So these are the three habits which may be of the plants belonging to family Fabaceae. Then we have the root. This is dicot, so taproot system, and root nodules present. Root nodules. What happens in taproot system? One primary root, thick primary root, it grows down and then it branches, giving secondary roots, and then the secondary roots, they branch and give rise to tertiary root, and so on. This branches in this way. This is typical dicot. So this is taproot. And root nodules, what happens? Suppose this is roots. So in this small nodules are there in the roots, and they contain, these are root nodules, they contain rhizobium bacteria. Rhizobium, which is nitrogen fixing bacteria. Means they change atmospheric nitrogen from the soil or air and convert them into the nitrogenous compound so that plants can absorb nitrogen. So this is very important, especially in case of pulses. Root nodules are present. So this is about the root. And then the stem. Stem is generally erect, but in case of herbs, in some it is climber. Climber means it cannot stand itself on its own, but needs some support. So this is support. So what will do? The stem will start growing in this way. स्टार्ट क्लाइंबिंग. इस तरह से जो भी इनको सपोर्ट मिलेगा, उसका सपोर्ट लेके ये उसके चारों ओर लपेटना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह को कहते हैं क्लाइंबर्स. फिर उसके बाद आती है लीव्स. वेरी इंपॉर्टेंट. लीव्स आर सिंपल. सिंपल मीन्स ये ब्रांच है, यहाँ से लीफ निकलेगी, और लीफ के एक्सिल में क्या होगा? एक बड होगा, जिससे ये बताता है कि ये कंप्लीट लीफ है. और इट में भी पिन्नेटली कंपाउंड. पिन्नेटली कंपाउंड में क्या होगा? ये जो है मिड रिब कहलाते हैं. लीफ, सिंपल लीफ में तो ये मिड रिब कहलाती है. इसमें ये लंबी इस तरह से हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं रैकिस. और इसके दोनों साइड में
फिर छोटी छोटी सी लीफलेट्स निकलती हैं। ये कंप्लीट लीफ नहीं है, ये क्या है, लीफलेट्स हैं। क्यों? क्योंकि बड कहाँ है, यहाँ। इनके एक्सिल में बड नहीं है, ये लीफ नहीं है, ये पूरी एक लीफ है, लेकिन छोटे छोटे लीफलेट्स में बट गई है। और इसी में कोई कभी कभी लीफलेट्स जो है ऊपर के शुरू सिरे के लीफलेट्स होते हैं वो टेंड्रिल में बदल जाते हैं, सपोर्ट के लिए लिपट जाते हैं ये सपोर्ट पे। ये फिर दूसरी चीज़ क्या है, इनका जो बेस होता है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ये जो लीफ का बेस है, ये पिट्यूल है, पिट्यूल तो जिस तरह से होगा, लेकिन ये क्या हो गया, फूल गया, ये कहलाता है पल्विनस। लीफ बेस क्या होगा, पल्विनस, माने फूला हुआ होगा। और इसमें ये मिडरिब है, इस केस में ये मिडरिब चेंज हो जाती है किसमें, रैकिस में। और ये फिर ये ब्रांच होते हैं, वेन्स जो है, मेन वेन जो है ये ब्रांच करती है, फिर री ब्रांच, इस तरह से करके पूरी जाल से ये पूरा लेमिना को भर लेते हैं। इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट माने जालीदार। वेन्स जो है वो पूरे में जाल की तरह फैली रहती है। ये डाइकोटिलीडन का ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस केस में, मटर वगैरह के केस में, एक यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, उनको कहते हैं हम ये स्टिप्यूल्स। सो स्टिप्यूल्स लीफ लाइक। मटर का पौधा यदि आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें से ये लीफ निकली रहती है। इसको ये क्या है, स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स लीफ लाइक। तो ये जो हो गया लीव्स के बारे में, ये हो गया पूरा कौन सी कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव। अब आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स, माने जो रिस्पॉन्सिबल हैं रिप्रोडक्शन के लिए। मेन रिस्पॉन्सिबल जो है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम और गायनीशियम होते हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दो चक्र और होते हैं, सेपल्स और पेटल्स के। तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसमें सबसे पहले हम लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस माने अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लावर एक्सिस। इस केस में इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो होता है रेसिमोज। रेसिमोज क्या होगा, ये इस तरह से फ्लावर एक्सिस है, इसमें यहाँ पे फूल होगा, ये फ्लावर एक्सिस है। इसमें देख रहे हैं जो बड़े फ्लावर हैं, पुराने फ्लावर वो कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे, और धीरे धीरे ये एक्सिस बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एक्सिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नए और छोटे फ्लावर निकलते रहेंगे। तो एक बार में हम देखेंगे तो बड़े फ्लावर नीचे दिखेंगे पुराने वाले, और छोटे फ्लावर ऊपर। इस तरह को अरेंजमेंट करते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन, और ये फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है रेसिमोज। तो इसमें रेसिमोज जो है वो इन्फ्लोरेसेंस होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है फ्लावर। यहाँ पे कई सारे टर्म्स आपको समझने हैं। फ्लावर्स में पहला तो क्या है, ये बाइसेक्चुअल। बाइसेक्चुअल जैसे बताया, एंड्रोशियम और गायनीशियम। एंड्रोशियम मेल ऑर्गन होता है और गायनीशियम फीमेल होता है। बाइसेक्चुअल माने दोनों हैं, इस एक फूल के अंदर एंड्रोशियम भी होगा और गायनीशियम भी होगा। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जाइगोमॉर्फिक, जो इस फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और इसको इस तरह से शो करते हैं। इसको जो है अंडरलाइन कर ले, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस फैमिली का। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, इस जाइगोमॉर्फिक होता है बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, इसको हम डिवाइड करते हैं इस प्लेन में, तो हमें क्या मिलते हैं, दो आइडेंटिकल हाफ्स मिल जाते हैं। इस तरह डिवाइड करेंगे तब भी हमें दो आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे। मतलब कई प्लेन में इसको डिवाइड करेंगे तो हमें हर बार
आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे। लेकिन यदि ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता कुछ, तो क्या होता, हर बार हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं मिले, हाफ्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ये वाला प्लेन जो है, इस प्लेन में यदि डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, दो आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। इस तरह की सिमेट्री जो है वो कहलाती है जाइगोमॉर्फिक। ये क्यों हो सकती है, या तो नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो अलग अलग है, एक तरफ 3 है पार्ट, एक तरफ 5 है, या कलर अंतर हो सकता है किसी का, या कोई खास स्ट्रक्चर हो सकता है। इसको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और जो है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद आता है कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, वो हरा पार्ट जो कि बड में, जब फ्लावर बड के फॉर्म में होता है तब इसको ये यहाँ से ढके रखता है, ये वाला, ये कहलाता है कैलिक्स। टोटल मिलके कैलिक्स है। और एक एक इसके जो है वो क्या कहलाते हैं, सेपल्स कहलाते हैं। यहाँ पर 5 सेपल्स होते हैं इस तरह से, 3 तो इधर दिख रहा है और 2 ये पीछे है सेपल। तो आप देख रहे हैं ये सेपल्स क्या है, यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाते हैं गैमोसिपेलस। गैमो माने जुड़े हुए, और सेपल्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए इस कंडीशन को कहेंगे गैमोसिपेलस। यदि अलग अलग होते तो कैसे होते, ये वो है, एक ये होता है, 2 3 4 5, ये क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कैसे होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे टिप पे फ्री हो सकते हैं लेकिन बेस में क्या है, जुड़े हुए होंगे। फिर इनका एस्टिवेशन जो है वो वेलवेट और इम्ब्रिकेट, ये एस्टिवेशन माने होता है मैनर, किस मैनर में ये एक दूसरे के, एक ही चक्र के जो मेंबर्स हैं वो आपस में किस तरह से अरेंज हैं। जैसे कि वेलवेट में क्या रहते हैं, केवल ये टच करते हैं, ये एक सेपल है, दूसरा तीसरा, इस तरह से सेपल्स हैं और इनके मार्जिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं कहीं पर भी, ये टच कर सकते हैं, जुड़े हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ये होता है वेलवेट। और इम्ब्रिकेट में क्या होता है, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है पर ये कहीं कहीं पर ओवरलैप भी कर सकते हैं, जैसे ये है, इसमें क्या है, यहाँ पे ओवरलैपिंग ये कर रहा है, यहाँ ओवरलैपिंग ये कर रहा है, यहाँ पे दोनों ओर से ओवरलैपिंग कर रहा है। तो मार्जिन जो है ओवरलैप करते हैं लेकिन डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है इनमें, इस तरह से। ये हो गया कैलिक्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो ये जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, के 5 सेपल्स है, लेकिन वो क्या है, गैमोपेटलस, माने इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे इसका। फिर आ जाता है क्या, कोरोला, जो पंखुड़ियाँ होती हैं मेन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कोरोला। कोरोला में जो एक एक मेंबर है उनको हम कहते हैं पेटल्स। तो यहाँ पर 5 पेटल्स होते हैं लेकिन ये सब जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए इसको कहेंगे पॉलीपेटलस। सेपल्स के केस में सेपेलस और पेटल्स के केस में पेटलस, माने ये अलग अलग है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। यहाँ पे ये किस तरह से अरेंज है, वैक्सिलरी, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी से पूरी फैमिली को आप पहचान सकते हो। वैक्सिलरी एस्टिवेशन यदि है तो वो फैबेसी फैमिली है। इसमें क्या होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं, लेकिन जैसे ये फ्लावर है, एक तो इसमें पेटल बहुत बड़ा सा होगा, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड। फिर इसके नीचे 2, एक इधर और एक दूसरी तरफ, छोटे पेटल्स होंगे, ये कहलाते हैं विंग्स। और फिर इनके भी अंदर छोटे छोटे 2 होंगे, ये जुड़े हुए रहते हैं, ये कहलाते हैं कील। तो इस तरह से 5 हो गए, 1 2 और 2, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 है लेकिन 1 + 2 + 2, 2 क्या है, ये जुड़े हुए हैं। और ये हमेशा जो ये बड़ा वाला स्टैंडर्ड वाला, ये हमेशा किधर रहेगा, मदर एक्सिस की तरफ ही रहेगा। जैसे मान लो इस तरफ का यदि हम दिखाएंगे तो हम बड़े वाले को इधर दिखाएंगे और छोटे वाले यहाँ होंगे, मतलब ये बड़ा वाला चाहे इधर हो चाहे इधर, हमेशा मदर एक्सिस की तरफ ही होगा। तो ये जो है ये फ्लोरल डायग्राम में दिखाएंगे।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका पूछा भी गया है कई बार। ये जो है 2012 में भी पूछा गया है और 2020 में भी ये पूछा गया है, बैक्टीरियरी एस्टिवेशन और कील जो है वो सबसे अंदर वाले हैं। और जब हम फ्लोर डायग्राम बनाएंगे तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड वाला। फिर ये जो हो गए एक इधर क्या होगा, ये विंग्स हो गए। और फिर इनके अंदर जो है छोटे छोटे दो, ये क्या हो गए, कील हो गए। और ये कील जो है वो जुड़े रहते हैं। तो ये 1 + 2 + 2 जुड़े हुए। तो ये इस तरह से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गए कोरोला। अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि क्या है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या होते हैं, स्टेमेंस होते हैं। स्टेमेंस में क्या है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का। ये कहलाता है फिलामेंट और ये कहलाता है एंथर। तो एक स्टेमन में एक फिलामेंट और एक एंथर होगा। इस तरह के 10 स्टेमन्स होते हैं यहाँ पे। लेकिन फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, डायडल्फस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसी फैमिली में है केवल, डायडल्फस। इसका मतलब क्या हुआ, डाई माने 2, डल्फस माने ग्रुप। 2 ग्रुप में होते हैं, 10 स्टेमन्स होते हैं लेकिन 2 ग्रुप में होते हैं। कैसे होते हैं, ये आपका ये फ्लावर का यहाँ शुरू हो रहा है, तो ये तो एक स्टेमन हो गया और बाकी 9 जो हैं वो यहाँ है। ये 9 जुड़े हुए हैं। तो इनको हम किस तरह से शो करेंगे, 1 + 9, और 9 कैसे हैं, जुड़े हुए। और ये कंडीशन क्या कहलाएगी, डायडल्फस कंडीशन, क्योंकि जो स्टेमन्स हैं वो 2 ग्रुप में हैं। फिर जो है एंथर्स जो है डाइथिकस। डाइथिकस माने 2 लोब्स। जो एंथर है इसमें 2 लोब्स होते हैं, एक लोब ये है, एक लोब ये है, और दोनों लोब में 2-2 चैम्बर होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया क्या, एंथर, डाइथिकस एंथर। और जब हम इसको फ्लोरल डायग्राम में शो करेंगे तो हम ये इसको इस तरह से कर सकते हैं, वहाँ पे हम स्टेमेंस को इस तरह से बनाएंगे या इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये डाइथिकस एंथर्स शो करते हैं। ये डायडल्फस कंडीशन वैक्सिलरी एस्टिवेशन पेटल्स में और डायडल्फस कंडीशन एंड्रोशियम में, मेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसको ए से शो करते हैं, एंड्रोशियम को ए से शो करेंगे, कैलिक्स को के से करेंगे और कोरोला को सी से करेंगे। अभी लिखेंगे तो बताएंगे। अब इसके बाद आता है गायनेशियम, फीमेल पार्ट। गायनेशियम में क्या होता है, एक ओवरी होती है, ये ओवरी है जो बाद में फ्रूट बनाती है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। ये क्या है, एक कार्पल है। इस तरह के बहुत सारे कार्पल गायनेशियम में हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा होंगे तो वो जुड़े भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, पर ये एक कार्पल है। यहाँ पे क्या है, मोनोकार्पलरी, माने एक ही है, एक ही कार्पल है, माने एक ओवरी, एक स्टाइल, एक स्टिग्मा, इसमें एक ही होगा इस फैमिली में। और इसमें प्रेजेंटेशन माने अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी। यहाँ पर ये क्या है, मार्जिनल। फिर ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आ गया फैमिली का, मार्जिनल माने क्या है, जो ओवरी होती है वही क्या देती है, फ्रूट देती है। तो आप मटर का फली तो आपने सबने देखी है, उसमें किस तरह से अरेंज रहते हैं बीज, वो ई ओव्यूल की कंडीशन शो करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर मटर के दाने लगे रहते हैं, ये ओवरी है। ये इसका 2 तरफ से खुल सकती है फली, उस तरह से यहाँ पे 2, एक डॉर्सल स्यूचर होता है, ये
वेंट्रल सुचर होता है, तो वेंट्रल साइड में इसके ये ओव्यूल्स लगे रहते हैं प्लेसेंटा पे। ये पोर्शन क्या होता है, प्लेसेंटा, इसीलिए इसको प्लेसेंटेशन कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी। तो इस तरह से ये फल इसमें रहता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन बहुत इसका इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आ जाता है फ्रूट, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है इसलिए इसके फ्रूट को लेग्यूम कहते हैं, या ये पॉड भी कहलाता है। और इस तरह की ओवरी से बना है। इसमें ओवरी में एक चीज़ और भी रह गई, ओवरी सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर माने क्या होता है, जहाँ पर फूल निकलता है पेडंकल से, ये मान लीजिए इसकी डंठल है, तो ये आगे चल के इस तरह से हो जाती है, इसी पे फिर सारे वल्स जो है वो चक्र निकलते हैं। ओवरी यहाँ से निकली मान लीजिए, और स्टेमन्स यहाँ से निकले, फिर ये पेटल्स निकले, और फिर ये सेपल्स निकले। तो दिख रहा है कि ओवरी सबसे ऊपर वाली जगह से निकली, बाकी जो चक्र हैं वो सब इसके नीचे हैं। इस तरह की कंडीशन होती है, उसको कहते हैं ओवरी सुपीरियर। ओवरी सबसे ऊपर वाली जगह से निकली है, और बाकी जो पार्ट्स हैं जैसे गायनीशियम, इसके कार्पेल के अलावा, वो सब नीचे से निकले हैं। तो ये सीड्स इसमें जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसमें एंडोस्पर्म और कॉटिलीडन दोनों होते हैं, पर इनमें भोजन जो है वो कहाँ इकट्ठा रहता है, कॉटिलीडन से। मटर या चना वगैरह आपने देखा है इस तरह से रहता है, ये कॉटिलीडन है, इसमें स्टोर रहता है खाना, इसलिए एंडोस्पर्म जो है वो खत्म हो जाता है। जब ओव्यूल जो है सीड में चेंज होता है तो एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, क्योंकि खाना कहाँ रहता है, ये कॉटिलीडन्स में रहता है, और जिसमें एंडोस्पर्म में रहता है वो एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। पर यहाँ पर नैनो एंडोस्पर्मिक है, मतलब कि वो खाना इनका कॉटिलीडन्स में रहता है। फ्लोरल फार्मूला लिखना अब बहुत सरल होगा आपके लिए। पहली चीज़ तो ये जाइगोमॉर्फिक, ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर ये बाइसेक्सुअल, फिर ये कैलिक्स 5 गैमोसेपेलस, पेटल्स 5 1 + 2 + 2 ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। A 1 + 9 ये भी एक्सप्लेन कर दिया। G ये क्या है, मोनोकार्पेलरी, एक ही कार्पल है, और यहाँ पे ये अंडरलाइन करते हैं, जिसका मतलब ओवरी क्या है, सुपीरियर है। तो ये तो हो गया फ्लोरल फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली फ्लोरल फार्मूला देके भी, ये फ्लोरल फार्मूला से 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है। तो इसको पहचानने के लिए बहुत आसान है। एक तो आप जाइगोमॉर्फिक देखिए, यदि जाइगोमॉर्फिक है तो वो नेचुरली ये इसमें फैबेसी है, क्योंकि बाकी फैमिली जो आपके कोर्स में है उसमें ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है। और एंडोशियम देखिए 1 + 9, इससे आपको, या पेटल्स देखिए, कोरोला देखिए 1 + 2 + 2, तो आपको पहचान में आ जाएगा। अब हम आते हैं फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में क्या होता है, 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहर का जो चक्र है वो किसका है, सेपल्स का है। फिर उसके बाद का चक्र किसका है, पेटल्स का है। फिर उसके बाद आते हैं एंड्रोशियम, और उसके सबसे अंदर में क्या है, ओवरी। ओवरी का क्या रहता है, TS रहता है, तो यहाँ पर ये ओव्यूल है। अब इसमें हमने बताया 5 सेपल्स थे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 सेपल्स हैं। और क्या थे, गैमो थे। गैमो थे मतलब ये सब जुड़े हुए थे, इनको इस तरह से जोड़ दीजिए। फिर पेटल्स में क्या था, एक बड़ा था स्टैंडर्ड, ये वाला, ये पेटल हो गया बड़ा वाला स्टैंडर्ड। फिर 2 इसकी मार्जिन इसके ऊपर चढ़ी हुई थी, इसलिए 2 ये क्या हो गए, विंग्स हो गए। और फिर इनके अंदर यहाँ पर ये 2 कील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कील, और ये कील क्या है, जुड़े हुए हैं। फिर इसके बाद एंडोशियम स्टेमन 10 होते हैं, 1 और 9, तो 1 तो ये हो गया, और बाकी 9 जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ये इस तरह से आप बना सकते हैं 9। ये किस तरफ रहेगा, ये वाला पेटल स्टैंडर्ड,
और ये सिंगल स्टेमन किधर रहता है, मदर एक्सिस की तरफ, इसको ये शो करता है मदर एक्सिस, पोस्टीरियर साइड। ये स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ रहेंगे, पोस्टीरियर साइड में। इस तरह से आप देख सकते हैं जाइगोमॉर्फिक। यदि हम ऐसे काटेंगे तब तो इक्वल हाफ्स में बटेगा, लेकिन ऐसे काटेंगे तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल हाफ्स नहीं बनेंगे, इसीलिए ये जाइगोमॉर्फिक है। तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। अब इसके बाद इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कौन से इसके प्लांट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसमें सबसे पहले तो पल्सेज ही आते हैं। पी तो सबसे पहले बता ही दिया, उसके अलावा ग्राम, चना, अरहर, मूंग, मसूर, जितनी भी दालें हैं वो सारी इसमें आती हैं। फिर कुछ एडिबल ऑयल्स हैं वाले प्लांट्स हैं, जैसे कि सोयाबीन और ग्राउंडनट, मूंगफली, ये भी इसी में आती है। ये आपको नाम जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी नाम दे के आता है कि इसमें किस तरह का एस्टिमेशन होगा या किस तरह के इसमें प्रेजेंटेशन होगा। इसमें इंडिगोफेरा, नील, इंडिगोफेरा ये नील निकलता है, ये इसमें आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, इंडिगोफेरा नाम देके कि ये इसमें किस तरह का इसका किस तरह का फ्लोरल अरेंजमेंट होगा या किस तरह के एंड्रोशियम होंगे, किस तरह के। फिर एक मेडिसिन, मेडिसिन में एक प्लांट इम्पॉर्टेंट है मुलेठी। ये जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के ये प्लांट्स हैं जो फैबेसी फैमिली में आते हैं, इतने सारे। तो ये हो गया आपकी फैमिली का डिस्क्रिप्शन। तो आप कैसे पहचानेंगे कोई भी फैमिली की, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है या जो पूछ रहे हैं वो फैबेसी फैमिली का है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें आपको केवल 3-4 चीज़ें देखनी है और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फैबेसी फैमिली की बात कर रहे हैं। पहली चीज़ तो क्या हो जाएगी, आप देखिए रूट नोड्यूल्स। रूट्स में यदि नोड्यूल्स दिए हुए हैं तो डेफिनेटली ये फैबेसी है। दूसरा, फ्लावर क्या हो, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक केवल इसी में है, 4 फैमिलीज कोर्स में आपके, उसमें केवल इसी में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। यदि जाइगोमॉर्फिक है तो ये। फिर वैक्सिलरी एस्टिवेशन इन पेटल्स, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, एक स्टैंडर्ड, 2 विंग्स और 2 कील। और फिर स्टेमन्स में डायडल्फस कंडीशन, मतलब क्या हो गया, 2 ग्रुप में स्टेमन, 10 स्टेमन्स हैं, 2 ग्रुप में है, 1 और 9 वाले जुड़े हुए हैं, ये डायडल्फस है। फिर प्रेजेंटेशन क्या है, मार्जिनल। मार्जिनल प्रेजेंटेशन माने मार्जिन पर, वेंट्रल मार्जिन पर ओवरी के अंदर ओव्यूल्स लगे रहते हैं, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन और मोनोकार्पेलरी ओवरी, मोनोकार्पेलरी, क्योंकि बाकी जो आपके सिलेबस में है किसी में भी एक कार्पल वाली ओवरी नहीं, गायनीशियम नहीं है, केवल इसी में क्या है, माइनस में। इसमें ये और ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यदि दिए हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बता दीजिए कि ये क्या है, फैबेसी फैमिली है। तो ये फैबेसी फैमिली के बारे में आशा समझ में आया। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।